Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear cadets of class first year. Gentlemen, once again I welcome you all in the series of video lectures. As in our previous lecture, we had discussed about the character sketch of the hero of the play, that is the Count of Monte Cristo. And today we are going to talk about the villain of the play, the Count of Morcerf. The Count of Morcerf is presented as the villain of the play, The Count's Revenge. The villain of the play, जो गुंडा है बदमाश है प्ले का, that is the Count of Morcerf. Prior to becoming a count, he was a fisherman. ल- Before being count, he was a fisherman. पहले वो एक fisherman था count होने से पहले. He was then known as Fernand Mendigo. At that time, he was known as his name was Fernand Mendigo. उस वक्त वो Fernand Mendigo के नाम से जाना जाता था. At that point of time, he lived in Marseilles. At that time, he used to live in Marseilles, a port near France, a port in the south of the France. फ्रांस के साउथ में एक पोर्ट था, बंदरगाह था मर्सलीस. उस टाइम वो वहाँ रहता था. He had a friend, Edmond Dantes, who was a sailor. He was a good friend of the sailor Edmond Dantes. एक सेलर था जिसका नाम था एडमंड डांटेस. वो उसके साथ रहता था, उसका बहुत ही करीबी दोस्त था. Fernand was quite friendly with him. He had good relations with Edmond Dantes. बहुत ही अच्छा दोस्त था एडमंड डांटेस का फर्नैंड मंडिगो. Edmund was engaged to a beautiful Catalan girl, Mercedes. Now, Edmund Dantes was betrothed with a beautiful Catalan girl, Mercedes. Mercedes जो कैटलोनिया की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, उसके साथ एडमंड की मंगनी हुई थी. This fact was known to Fernand. Fernand knew that fact. उस हकीकत के बारे में, इस चीज़ के बारे में उसको अच्छी तरह से मालूमात थी फर्नैंड मंडिगो को कि मर्सिडीज की मंगनी एडमंड डांटेस उसके दोस्त के साथ की हुई है. But being an evil-natured man, he secretly yearned to marry Mercedes. He was a person of evil kind of nature. Evil nature का बंदा था, बहुत ही गलत और शैतानी वाली तबीयत का बंदा था. तो उसकी वजह से क्या था कि वो चुप चुप में मर्सिडीज से प्यार करता था और उसके साथ वो शादी करना चाहता था. Therefore, to make his dream come true, he hatched a plot, the most diabolical plot which any man could have hedged against any man. जिसकी वजह से फिर क्या हुआ कि उसने अपने दोस्त के खिलाफ एक मनगढ़ंत कहानी बनाई, वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के लिए कि जैसे वो मर्सिडीज से शादी कर सके. A rogue and a rascal. He was a scoundrel. He was a rascal person. एक बदमाश किस्म का बंदा था. He is out and out a rogue and a rascal. He was a scoundrel, एक बदमाश था. In order to win the hand of Mercedes, he framed a false charge against his friend Edmund in the court. Mercedes को हासिल करने के लिए उसने अपने दोस्त के खिलाफ एक झूठी कहानी बनाई और वो कहानी उसने कोर्ट में पेश की. He proved that Edmund was the spy of the exiled Napoleon Bonaparte. उसने ये साबित किया कि इसका जो दोस्त थे एडमंड डांटेस वो जलावतन हुक्मरान नेपोलियन बोनापार्ट का जासूस है. ये साबित किया फर्नैंड मंडिगो ने अपने दोस्त के खिलाफ, सिर्फ और इस चीज़ के लिए एज ही can get married with the Mercedes, the fiancée of his friend Edmond Dantes. He provided false evidences against Edmund and thus got him imprisoned. एडमंड के खिलाफ वो झूठे सबूत लेकर आया, उसने वो झूठे सबूत पेश किए और उसको कैद करवा लिया अपने दोस्त को. इन दिस वे ही वेरी क्लेवरली रिमूव द एडमंड इनोसेंट एडमंड आउट ऑफ द वे. इस तरह से बहुत ही चालाकी के साथ उसने एडमंड, मासूम एडमंड को अपने रास्ते से हटा दिया. A man, a mean and degraded man. He was a mean, he was a self-centered man, materialistic man, मफाद परस्त था और उसकी कोई इज्जत और एहतराम नहीं था दूसरों की नज़र में उसका, काउंट ऑफ मोर्सिफ का. He first convinced Mercedes out of the death of
He first convinced Mercedes of the death of Edmund by publishing the false news of his death in the newspaper. पहले उसने मर्सिडीज़ को इस चीज़ पर आमादा कर लिया, उसको ये यकीन दिलवाने में वो कामयाब हो गया एक बहुत ही गलत न्यूज़ पब्लिश करवा के न्यूज़पेपर में कि एडवन डांटेस जेल में मर चुका है. देन अपियरिंग एज अ फ्रेंड एंड अ सिंपथाइजर एंड फर्स्ट कंसोल्डर, और फिर उसने क्या किया, ही became the friend of the Mercedes, and he showed his sympathy with her just to console herself. उसको राज़ी करने के लिए, उसको एहसास दिलाने के लिए, उसके साथ हमदर्दी ज़ाहिर करने के लिए, उसका एतमाद हासिल करने के लिए उसने क्या किया कि उसके दोस्त होने का एक ड्रामा रचा उसने, एक अदाकारी की उसके साथ, एक अपेरेंट किस्म की हमदर्दी का इजहार किया. आफ्टर विनिंग हर कॉन्फिडेंस ही देन प्रपोज्ड मैरियर, और जब वो उसका एतमाद जीतने में कामयाब हो गया तो फिर उसको शादी के लिए ऑफ़र की. बीइंग हार्ट ब्रोकन एंड लोनली, शी एक्सेप्टेड हिज ऑफर. Now, after listening to the news of his fiancée Edmund Dantes, Mercedes was totally heartbroken and she was totally alone now. So जिसकी वजह से उसने क्या किया, जब वो उसका दिल टूट गया मर्सिडीज का, वो अकेली हो गई, तन्हा हो गई, तो she did not have any other option. So that's why she accepted the offer of the villain Count of Morcerf Fernand Mondego. उसकी ऑफर को उसने तस्लीम किया, उसके साथ शादी करने के लिए वो राज़ी हो गई. Thus the evil monster succeeded in his devilish plan, और जिसकी वजह से ये जो बदमाश था काउंट ऑफ मोर्सेफ, वो अपने मंसूबे में कामयाब हो गया. As a traitor to his country, he was also a traitor to his country. अपने वतन का भी वो गद्दार था. Having accomplished all his plans successfully, he decided to settle down in Paris. जब उसके सारे मंसूबे, उसके सारे मकासद हासिल हो गए, तो फिर उसने ये फैसला किया कि वो अपने आप को पेरिस में सेट कर ले. So he said goodbye to Marseilles. Then that's why he decided to leave Marseilles, जहाँ वो रहता था पोर्ट पे. वहाँ से उसने फैसला कर लिया कि अभी मुझे यहाँ से जाना चाहिए, एंड आई शुड सेटल माई सेल्फ इन पेरिस. वाइल इन पेरिस ही ज्वाइन द आर्मी एंड आफ्टर सम टाइम बिकेम अ कैप्टन इन 1822. और जब वह पेरिस में पहुंचा तो उसने आर्मी में शमूलियत हासिल की, और 1822 में वो कैप्टन बन गया फ्रेंच आर्मी का. द फ्रेंच वर एट वार अगेंस्ट द तुर्क्स. उस वक्त फ्रांस वालों की तुर्कों के साथ जंग चल रही थी. फर्नैंड एज कैप्टन वाज डिफेंडिंग द फोर्ट्रेस ऑफ यनीना. एक कैप्टन की हैसियत से फर्नैंड जो था अपने वतन के जो उसका जो फोर्ट्रेस था फ्रांस का, यनीना, उसका वो दिफा कर रहा था. Being a coward and a mean person, he surrendered the fortress to the Turks on receiving a huge bribe. वो एक बुज़दिल शख्स था, मफाद परस्त था, तो जिसकी वजह से उसने अपने वतन के साथ गद्दारी करके अपने दुश्मनों से, तुर्कों से बड़े अमाउंट में रिश्वत हासिल करके वो जो यनीना का फोर्ट्रेस था उनके हवाले कर दिया. He, however, made it appear as though he got defeated. और उसने ये दूसरों को महसूस करवाया कि उसको शिकस्त मिली है, दुश्मनों ने खुद उस पर कब्जा कर लिया था, जिसकी वजह से वो उनके हवाले हो गया यानीना का फोर्ट्रेस. Having acquired tons of wealth, Ferdinand took his discharge from the army. He then took the title of the count and settled in Paris. जब उसको हद से ज़्यादा दौलत हासिल हुई दुश्मनों से रिश्वत हासिल करके, तो फिर फर्नांड ने क्या किया कि ज़्यादा दौलत हासिल करके फिर उसने आर्मी को छोड़ दिया, और फिर वो अपने आप को पेरिस में ठीक तरह से सेटल करके अपने आप को काउंट का लक़ब उसने दिलवाया. देन ही वाज नोन एज द काउंट ऑफ मोर्सेफ. As a liar and a wicked person. He was a liar, he was a cheater and very cruel person. झूठा था, मक्कार था, जालिम शख्स था. Having amassed a huge fortune, the count started living like a lord. When he is proved as a traitor in the chamber of deputies, he still kept denying his charges. काउंट ऑफ मोर्सेफ के पास पैसा बहुत ज़्यादा आ गया, जिसकी वजह से फिर वो बादशाहों वाली ज़िंदगी गुजारने का लगा. और जब उसको
डिप्टीज चैम्बर ऑफ डिप्टीज में फ्रेंच पार्लियामेंट की लोअर हाउस में जब उसको लाया गया और जब उसके खिलाफ चार्जेस साबित हुई गद्दार होने की, जो यनीना का फोर्ट्रेस था दुश्मनों के पास हवाले करने की चार्जेस, जब ये सारी चीज़ें उस पर साबित हुई तो वो उसको तस्लीम करने से इनकार कर रहा था, बिकॉज ही वॉज अ लायर। इवन इन द फेस ऑफ साउंड एविडेंस ही केप्ट डिनाइंग हिज गिल्ट, ही इज़ अ लायर एंड अ रॉक। और ताकि जब सारे सबूत उसके खिलाफ आ गए, सारे गवाह उसके खिलाफ हो गए और वो गिल्टी साबित हुआ, ट्रेटर साबित हुआ, उसके बावजूद भी वो अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहा था और अपने आप को गिल्टी मानने से इनकार कर रहा था। क्यों कर रहा था? बिकॉज ही वॉज अ लायर एंड स्काउंड्रल। अ वायलेंट डेथ, उसकी अब मौत कैसे खतरनाक मौत होती है। आफ्टर ही इज प्रूव्ड अ ट्रेटर ही इज स्टिल नॉट रिमोर्सफुल। हत्ता कि वो गद्दार साबित हुआ और उसके बावजूद भी वो अशेम्ड फील नहीं कर रहा था, शर्मिंदगी महसूस नहीं कर रहा था कि वो गद्दार है अपने वतन का। वैन मतलब उसको कोई एहसास ही नहीं था इस चीज़ का कि भाई मैंने इतना बड़ा गलत काम किया है। वैन ही इज़ फेस टू फेस विद एडमंड ही पुल्स आउट हिज पिस्टल टू शूट हिम। और जब एडमंड डांटेस के साथ, काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो के साथ फेस टू फेस उसकी लड़ाई होती है तो फिर वो क्या करता है, पिस्टल अपनी जेब से निकालता है। बट अल्बर्ट एंड बिचैम्प पाउंस्ड ऑन हिम टू स्नैच द पिस्टल फ्रॉम हिम। लेकिन फिर क्या होता है कि अल्बर्ट और बिचैम्प दोनों उसके पास आगे तेज़ी से जाते हैं और पिस्टल छीनने की उससे कोशिश करते हैं। इन द स्ट्रगल द पिस्टल गोज ऑफ एंड द काउंट ऑफ मोर्सेफ शूट्स हिमसेल्फ। और इसी कश्मकश में पिस्टल फिर क्या होता है कि उससे चल जाता है और उसके अपने पिस्टल की गोली उसे खुद को ही लग जाती है। दस मोंटी क्रिस्टो इज अवेंज। इससे क्या होता है कि मोंटी क्रिस्टो अपना बदला लेने में कामयाब हो जाता है। सो जेंटलमैन, दैट वाज ऑल अबाउट द कैरेक्टर स्केच ऑफ द विलेन Count of Morcerf, who was known as Fernand Mondigo in past time. That was all about his character. Hope you people will watch the video and will make the most of it. Thank you so much.